ना सुना। نہیں ہے تو نہیں ہے. مرضی ہے بھائی. داہن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے آئلہ, لیکن تم تو اس سے بھی بدتر نکلی. کم از کم ہماری دوستی کا ہی لحاظ کر لیتی. تمہیں پوری دنیا چھوڑ کر اوہن ملا تھا نکاح کرنے کے لیے. تمہیں ساری دنیا چھوڑ کر احتشام ہی ملا تھا نکاح کرنے کے لیے. اچھا, تو تم نے سوچا تم مجھ سے بدلا لو گی؟ آئلہ, تم جانتی تھی کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں. کسی اور کے نکاح میں ہونے کے باوجود یہ زبردستی کا نکاح تھا آئلہ. مجھے تو نفرت ہے تمہارے اس احتشام الدین سے, اور میں تو ویٹ کر رہی ہوں کب وہ موقع آئے جب میں اس سب سے اپنی جان چھڑوا لوں. میں بھی تمہارے اس اون کے عشق میں مری نہیں جا رہی تھی. مجبوری کا ہی سودا ہے. یہ تربیت کی ہے تم نے اپنی بیٹی. ایک گاؤں میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا جس کا نام حسان تھا. وہ ہر روز پہاڑی کے اوپر جا کر سورج غروب ہوتے دیکھتا. ایک دن اسے وہاں ایک پرانا درخت نظر آیا جس کے تنے پر لکھا تھا, جو اپنا سب سے بڑا خواب یہاں لکھ دے اس کا راستہ کھل جائے گا. حسان نے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا اور لکھ دیا, میں چاہتا ہوں کہ میرے گاؤں کے سب بچے پڑھ لکھ سکیں. اس نے کاغذ درخت کے پاس رکھ دیا اور گھر واپس آ گیا. اگلی صبح اسے درخت کے نیچے ایک تھیلا ملا. تھیلے میں سونا نہیں تھا بلکہ چند کتابیں, پنسلیں اور ایک خط تھا. خط میں لکھا تھا, خواب وہ نہیں جو صرف اپنے لیے ہو, اصل خواب وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھی روشنی بنے. حسان نے انہی کتابوں سے گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے. کسی نے مزید کتابیں دیں, کسی نے ایک کمرہ دے دیا اور کسی نے میز اور کرسیاں. چند سال بعد وہی چھوٹا سا کمرہ ایک بڑا اسکول بن گیا. ایک دن حسان پھر اسی درخت کے پاس گیا. درخت پر اب ایک نئی تحریر تھی, میں جادوئی درخت نہیں تھا, جادو تمہارے نیک خواب اور محنت میں تھا. ایک گاؤں میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا جس کا نام حسان تھا. وہ ہر روز پہاڑی کے اوپر جا کر سورج غروب ہوتے دیکھتا. ایک دن اسے وہاں ایک پرانا درخت نظر آیا جس کے تنے پر لکھا تھا, جو اپنا سب سے بڑا خواب یہاں لکھ دے اس کا راستہ کھل جائے گا. حسان نے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا اور لکھ دیا, میں چاہتا ہوں کہ میرے گاؤں کے سب بچے پڑھ لکھ سکیں. اس نے کاغذ درخت کے پاس رکھ دیا اور گھر واپس آ گیا. اگلی صبح اسے درخت کے نیچے ایک تھیلا ملا. تھیلے میں سونا نہیں تھا بلکہ چند کتابیں, پنسلیں اور ایک خط تھا. خط میں لکھا تھا, خواب وہ نہیں جو صرف اپنے لیے ہو, اصل خواب وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھی روشنی بنے. حسان نے انہی کتابوں سے گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے. کسی نے مزید کتابیں دیں, کسی نے ایک کمرہ دے دیا اور کسی نے میز اور کرسیاں. چند سال بعد وہی چھوٹا سا کمرہ ایک بڑا اسکول بن گیا. ایک دن حسان پھر اسی درخت کے پاس گیا. درخت پر اب ایک نئی تحریر تھی, میں جادوئی درخت نہیں تھا, جادو تمہارے نیک خواب اور محنت میں تھا. ایک گاؤں میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا جس کا نام حسان تھا. وہ ہر روز پہاڑی کے اوپر جا کر سورج غروب ہوتے دیکھتا. ایک دن اسے وہاں ایک پرانا درخت نظر آیا جس کے تنے پر لکھا تھا, جو اپنا سب سے بڑا خواب یہاں لکھ دے اس کا راستہ کھل جائے گا. حسان نے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا اور لکھ دیا, میں چاہتا ہوں کہ میرے گاؤں کے سب بچے پڑھ لکھ سکیں. اس نے کاغذ درخت کے پاس رکھ دیا اور گھر واپس آ گیا. اگلی صبح اسے درخت کے نیچے ایک تھیلا ملا. تھیلے میں سونا نہیں تھا بلکہ چند کتابیں, پنسلیں اور ایک خط تھا. خط میں لکھا تھا, خواب وہ نہیں جو صرف اپنے لیے ہو, اصل خواب وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھی روشنی بنے. حسان نے انہی کتابوں سے گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے. کسی نے مزید کتابیں دیں, کسی نے ایک کمرہ دے دیا اور کسی نے میز اور کرسیاں.
चंद साल बाद वही छोटा सा कमरा एक बड़ा स्कूल बन गया। एक दिन हसन फिर उसी दरख्त के पास गया। दरख्त पर अब एक नई तहरीर थी, जादुई दरख्त नहीं था, जादू तुम्हारे नेक ख्वाब और मेहनत में था। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। वो हर रोज पहाड़ी के ऊपर जाकर सूरज गुरूब होते देखता। एक दिन उसे वहाँ एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके तने पर लिखा था, जो अपना सबसे बड़ा ख्वाब यहाँ लिख दे इसका रास्ता खल जाएगा। हसन ने एक छोटा सा कागज निकाला और लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सब बच्चे पढ़ लिख सकें। इसने कागज दरख्त के पास रख दिया और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे दरख्त के नीचे एक थैला मिला। थैले में सोना नहीं था बल्कि चंद किताबें, पेंसिलें और एक खत था। खत में लिखा था, ख्वाब वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए हो, असल ख्वाब वो है जो दूसरों के लिए भी रोशनी बने। हसन ने इन्हीं किताबों से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ शामिल होते गए। किसी ने मजीद किताबें दी, किसी ने एक कमरा दे दिया और किसी ने मेज़ और कुर्सियां। चंद साल बाद वही छोटा सा कमरा एक बड़ा स्कूल बन गया। एक दिन हसन फिर उसी दरख्त के पास गया। दरख्त पर अब एक नई तहरीर थी, मैं जादुई दरख्त नहीं था, जादू तुम्हारे नेक ख्वाब और मेहनत में था। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। वो हर रोज पहाड़ी के ऊपर जाकर सूरज गुरूब होते देखता। एक दिन उसे वहाँ एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके तने पर लिखा था, जो अपना सबसे बड़ा ख्वाब यहाँ लिख दे इसका रास्ता खल जाएगा। हसन ने एक छोटा सा कागज निकाला और लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सब बच्चे पढ़ लिख सकें। इसने कागज दरख्त के पास रख दिया और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे दरख्त के नीचे एक थैला मिला। थैले में सोना नहीं था बल्कि चंद किताबें, पेंसिलें और एक खत था। खत में लिखा था, ख्वाब वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए हो, असल ख्वाब वो है जो दूसरों के लिए भी रोशनी बने। हसन ने इन्हीं किताबों से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ शामिल होते गए। किसी ने मजीद किताबें दी, किसी ने एक कमरा दे दिया और किसी ने मेज़ और कुर्सियां। चंद साल बाद वही छोटा सा कमरा एक बड़ा स्कूल बन गया। एक दिन हसन फिर उसी दरख्त के पास गया। दरख्त पर अब एक नई तहरीर थी, मैं जादुई दरख्त नहीं था, जादू तुम्हारे नेक ख्वाब और मेहनत में था। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। वो हर रोज पहाड़ी के ऊपर जाकर सूरज गुरूब होते देखता। एक दिन उसे वहाँ एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके तने पर लिखा था, जो अपना सबसे बड़ा ख्वाब यहाँ लिख दे इसका रास्ता खल जाएगा। हसन ने एक छोटा सा कागज निकाला और लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सब बच्चे पढ़ लिख सकें। इसने कागज दरख्त के पास रख दिया और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे दरख्त के नीचे एक थैला मिला। थैले में सोना नहीं था बल्कि चंद किताबें, पेंसिलें और एक खत था। खत में लिखा था, ख्वाब वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए हो, असल ख्वाब वो है जो दूसरों के लिए भी रोशनी बने। हसन ने इन्हीं किताबों से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ शामिल होते गए। किसी ने मजीद किताबें दी, किसी ने एक कमरा दे दिया और किसी ने मेज़ और कुर्सियां। चंद साल बाद वही छोटा सा कमरा एक बड़ा स्कूल बन गया। एक दिन हसन फिर उसी दरख्त के पास गया। दरख्त पर अब एक नई तहरीर थी, मैं जादुई दरख्त नहीं था, जादू तुम्हारे नेक ख्वाब और मेहनत में था। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। वो हर रोज पहाड़ी के ऊपर जाकर सूरज गुरूब होते देखता। एक दिन उसे वहाँ एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके तने पर लिखा था, जो अपना सबसे बड़ा ख्वाब यहाँ लिख दे इसका रास्ता खल जाएगा। हसन ने एक छोटा सा कागज निकाला और लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सब बच्चे पढ़ लिख सकें। इसने कागज दरख्त के पास रख दिया और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे दरख्त के नीचे एक थैला मिला। थैले में सोना नहीं था बल्कि चंद किताबें, पेंसिलें और एक खत था। खत में लिखा था, ख्वाब वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए हो, असल ख्वाब वो है जो दूसरों के लिए भी रोशनी बने। हसन ने इन्हीं किताबों से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ शामिल होते गए। किसी ने मजीद किताबें दी, किसी ने एक कमरा दे दिया और किसी ने मेज़ और कुर्सियां। चंद साल बाद वही छोटा सा कमरा एक बड़ा स्कूल बन गया। एक दिन हसन फिर उसी दरख्त के पास गया। दरख्त पर अब एक नई तहरीर थी, मैं जादुई दरख्त नहीं था, जादू तुम्हारे नेक ख्वाब और मेहनत में था। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हसन था।
वो हर रोज पहाड़ी के ऊपर जाकर सूरज गुरूब होते देखता। एक दिन उसे वहाँ एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके तने पर लिखा था, जो अपना सबसे बड़ा ख्वाब यहाँ लिख दे इसका रास्ता खल जाएगा। हसन ने एक छोटा सा कागज निकाला और लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सब बच्चे पढ़ लिख सकें। इसने कागज दरख्त के पास रख दिया और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे दरख्त के नीचे एक थैला मिला। थैले में सोना नहीं था बल्कि चंद किताबें, पेंसिलें और एक खत था। खत में लिखा था, ख्वाब वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए हो, असल ख्वाब वो है जो दूसरों के लिए भी रोशनी बने। हसन ने इन्हीं किताबों से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ शामिल होते गए। किसी ने मजीद किताबें दी, किसी ने एक कमरा दे दिया और किसी ने मेज़ और कुर्सियां। चंद साल बाद वही छोटा सा कमरा एक बड़ा स्कूल बन गया। एक दिन हसन फिर उसी दरख्त के पास गया। दरख्त पर अब एक नई तहरीर थी, मैं जादुई दरख्त नहीं था, जादू तुम्हारे नेक ख्वाब और मेहनत में था। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। वो हर रोज पहाड़ी के ऊपर जाकर सूरज गुरूब होते देखता। एक दिन उसे वहाँ एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके तने पर लिखा था, जो अपना सबसे बड़ा ख्वाब यहाँ लिख दे इसका रास्ता खल जाएगा। हसन ने एक छोटा सा कागज निकाला और लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सब बच्चे पढ़ लिख सकें। इसने कागज दरख्त के पास रख दिया और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे दरख्त के नीचे एक थैला मिला। थैले में सोना नहीं था बल्कि चंद किताबें, पेंसिलें और एक खत था। खत में लिखा था, ख्वाब वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए हो, असल ख्वाब वो है जो दूसरों के लिए भी रोशनी बने। हसन ने इन्हीं किताबों से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ शामिल होते गए। किसी ने मजीद किताबें दी, किसी ने एक कमरा दे दिया और किसी ने मेज़ और कुर्सियां। चंद साल बाद वही छोटा सा कमरा एक बड़ा स्कूल बन गया। एक दिन हसन फिर उसी दरख्त के पास गया। दरख्त पर अब एक नई तहरीर थी, मैं जादुई दरख्त नहीं था, जादू तुम्हारे नेक ख्वाब और मेहनत में था। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। वो हर रोज पहाड़ी के ऊपर जाकर सूरज गुरूब होते देखता। एक दिन उसे वहाँ एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके तने पर लिखा था, जो अपना सबसे बड़ा ख्वाब यहाँ लिख दे इसका रास्ता खल जाएगा। हसन ने एक छोटा सा कागज निकाला और लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सब बच्चे पढ़ लिख सकें। इसने कागज दरख्त के पास रख दिया और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे दरख्त के नीचे एक थैला मिला। थैले में सोना नहीं था बल्कि चंद किताबें, पेंसिलें और एक खत था। खत में लिखा था, ख्वाब वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए हो, असल ख्वाब वो है जो दूसरों के लिए भी रोशनी बने। हसन ने इन्हीं किताबों से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ शामिल होते गए। किसी ने मजीद किताबें दी, किसी ने एक कमरा दे दिया और किसी ने मेज़ और कुर्सियां। चंद साल बाद वही छोटा सा कमरा एक बड़ा स्कूल बन गया। एक दिन हसन फिर उसी दरख्त के पास गया। दरख्त पर अब एक नई तहरीर थी, मैं जादुई दरख्त नहीं था, जादू तुम्हारे नेक ख्वाब और मेहनत में था। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। वो हर रोज पहाड़ी के ऊपर जाकर सूरज गुरूब होते देखता। एक दिन उसे वहाँ एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके तने पर लिखा था, जो अपना सबसे बड़ा ख्वाब यहाँ लिख दे इसका रास्ता खल जाएगा। हसन ने एक छोटा सा कागज निकाला और लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सब बच्चे पढ़ लिख सकें। इसने कागज दरख्त के पास रख दिया और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे दरख्त के नीचे एक थैला मिला। थैले में सोना नहीं था बल्कि चंद किताबें, पेंसिलें और एक खत था। खत में लिखा था, ख्वाब वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए हो, असल ख्वाब वो है जो दूसरों के लिए भी रोशनी बने। हसन ने इन्हीं किताबों से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ शामिल होते गए। किसी ने मजीद किताबें दी, किसी ने एक कमरा दे दिया और किसी ने मेज़ और कुर्सियां। चंद साल बाद वही छोटा सा कमरा एक बड़ा स्कूल बन गया। एक दिन हसन फिर उसी दरख्त के पास गया। दरख्त पर अब एक नई तहरीर थी, मैं जादुई दरख्त नहीं था, जादू तुम्हारे नेक ख्वाब और मेहनत में था। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। वो हर रोज पहाड़ी के ऊपर जाकर सूरज गुरूब होते देखता। एक दिन उसे वहाँ एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके तने पर लिखा था, जो अपना सबसे बड़ा ख्वाब यहाँ लिख दे इसका रास्ता खल जाएगा। हसन ने एक छोटा सा कागज निकाला और लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सब बच्चे पढ़ लिख सकें।
इसने कागज दरख्त के पास रख दिया और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे दरख्त के नीचे एक थैला मिला। थैले में सोना नहीं था बल्कि चंद किताबें, पेंसिलें और एक खत था। खत में लिखा था, ख्वाब वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए हो, असल ख्वाब वो है जो दूसरों के लिए भी रोशनी बने। हसन ने इन्हीं किताबों से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ शामिल होते गए। किसी ने मज़ीद किताबें दी, किसी ने एक कमरा दे दिया और किसी ने मेज़ और कुर्सियां। चंद साल बाद वही छोटा सा कमरा एक बड़ा स्कूल बन गया। एक दिन हसन फिर उसी दरख्त के पास गया। दरख्त पर अब एक नई तहरीर थी, मी जादुई दरख्त नहीं था, जादू तुम्हारे नेक ख्वाब और मेहनत में था। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। वो हर रोज़ पहाड़ी के ऊपर जाकर सूरज गुरूब होते देखता। एक दिन उसे वहाँ एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके तने पर लिखा था, जो अपना सबसे बड़ा ख्वाब यहाँ लिख दे इसका रास्ता खुल जाएगा। हसन ने एक छोटा सा कागज निकाला और लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सब बच्चे पढ़ लिख सकें। इसने कागज दरख्त के पास रख दिया और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे दरख्त के नीचे एक थैला मिला। थैले में सोना नहीं था बल्कि चंद किताबें, पेंसिलें और एक खत था। खत में लिखा था, ख्वाब वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए हो, असल ख्वाब वो है जो दूसरों के लिए भी रोशनी बने। हसन ने इन्हीं किताबों से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ शामिल होते गए। किसी ने मज़ीद किताबें दी, किसी ने एक कमरा दे दिया और किसी ने मेज़ और कुर्सियां। चंद साल बाद वही छोटा सा कमरा एक बड़ा स्कूल बन गया। एक दिन हसन फिर उसी दरख्त के पास गया। दरख्त पर अब एक नई तहरीर थी, मैं जादुई दरख्त नहीं था, जादू तुम्हारे नेक ख्वाब और मेहनत में था। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। वो हर रोज़ पहाड़ी के ऊपर जाकर सूरज गुरूब होते देखता। एक दिन उसे वहाँ एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके तने पर लिखा था, जो अपना सबसे बड़ा ख्वाब यहाँ लिख दे इसका रास्ता खुल जाएगा। हसन ने एक छोटा सा कागज निकाला और लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सब बच्चे पढ़ लिख सकें। इसने कागज दरख्त के पास रख दिया और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे दरख्त के नीचे एक थैला मिला। थैले में सोना नहीं था बल्कि चंद किताबें, पेंसिलें और एक खत था। खत में लिखा था, ख्वाब वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए हो, असल ख्वाब वो है जो दूसरों के लिए भी रोशनी बने। हसन ने इन्हीं किताबों से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ शामिल होते गए। किसी ने मज़ीद किताबें दी, किसी ने एक कमरा दे दिया और किसी ने मेज़ और कुर्सियां। चंद साल बाद वही छोटा सा कमरा एक बड़ा स्कूल बन गया। एक दिन हसन फिर उसी दरख्त के पास गया। दरख्त पर अब एक नई तहरीर थी, मैं जादुई दरख्त नहीं था, जादू तुम्हारे नेक ख्वाब और मेहनत में था। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। वो हर रोज़ पहाड़ी के ऊपर जाकर सूरज गुरूब होते देखता। एक दिन उसे वहाँ एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके तने पर लिखा था, जो अपना सबसे बड़ा ख्वाब यहाँ लिख दे इसका रास्ता खुल जाएगा। हसन ने एक छोटा सा कागज निकाला और लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सब बच्चे पढ़ लिख सकें। इसने कागज दरख्त के पास रख दिया और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे दरख्त के नीचे एक थैला मिला। थैले में सोना नहीं था बल्कि चंद किताबें, पेंसिलें और एक खत था। खत में लिखा था, ख्वाब वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए हो, असल ख्वाब वो है जो दूसरों के लिए भी रोशनी बने। हसन ने इन्हीं किताबों से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ शामिल होते गए। किसी ने मज़ीद किताबें दी, किसी ने एक कमरा दे दिया और किसी ने मेज़ और कुर्सियां। चंद साल बाद वही छोटा सा कमरा एक बड़ा स्कूल बन गया। एक दिन हसन फिर उसी दरख्त के पास गया। दरख्त पर अब एक नई तहरीर थी, मैं जादुई दरख्त नहीं था, जादू तुम्हारे नेक ख्वाब और मेहनत में था। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। वो हर रोज़ पहाड़ी के ऊपर जाकर सूरज गुरूब होते देखता। एक दिन उसे वहाँ एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके तने पर लिखा था, जो अपना सबसे बड़ा ख्वाब यहाँ लिख दे इसका रास्ता खुल जाएगा। हसन ने एक छोटा सा कागज निकाला और लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सब बच्चे पढ़ लिख सकें। इसने कागज दरख्त के पास रख दिया और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे दरख्त के नीचे एक थैला मिला। थैले में सोना नहीं था बल्कि चंद किताबें, पेंसिलें और एक खत था। खत में लिखा था, ख्वाब वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए हो, असल ख्वाब वो है जो दूसरों के लिए भी रोशनी बने।
हसन ने इन्हीं किताबों से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ शामिल होते गए। किसी ने मजीद किताबें दी, किसी ने एक कमरा दे दिया और किसी ने मेज़ और कुर्सियां। चंद साल बाद वही छोटा सा कमरा एक बड़ा स्कूल बन गया। एक दिन हसन फिर उसी दरख्त के पास गया। दरख्त पर अब एक नई तहरीर थी। मी जादुई दरख्त नहीं था, जादू तुम्हारे नेक ख्वाब और मेहनत में था। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। वो हर रोज पहाड़ी के ऊपर जाकर सूरज गुरूब होते देखता। एक दिन उसे वहाँ एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके तने पर लिखा था, जो अपना सबसे बड़ा ख्वाब यहाँ लिख दे, इसका रास्ता खल जाएगा। हसन ने एक छोटा सा कागज निकाला और लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सब बच्चे पढ़ लिख सकें। इसने कागज दरख्त के पास रख दिया और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे दरख्त के नीचे एक थैला मिला। थैले में सोना नहीं था बल्कि चंद किताबें, पेंसिलें और एक खत था। खत में लिखा था, ख्वाब वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए हो, असल ख्वाब वो है जो दूसरों के लिए भी रोशनी बने। हसन ने इन्हीं किताबों से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ शामिल होते गए। किसी ने मजीद किताबें दी, किसी ने एक कमरा दे दिया और किसी ने मेज़ और कुर्सियां। चंद साल बाद वही छोटा सा कमरा एक बड़ा स्कूल बन गया। एक दिन हसन फिर उसी दरख्त के पास गया। दरख्त पर अब एक नई तहरीर थी, मी जादुई दरख्त नहीं था, जादू तुम्हारे नेक ख्वाब और मेहनत में था। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। वो हर रोज पहाड़ी के ऊपर जाकर सूरज गुरूब होते देखता। एक दिन उसे वहाँ एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके तने पर लिखा था, जो अपना सबसे बड़ा ख्वाब यहाँ लिख दे, इसका रास्ता खल जाएगा। हसन ने एक छोटा सा कागज निकाला और लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सब बच्चे पढ़ लिख सकें। इसने कागज दरख्त के पास रख दिया और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे दरख्त के नीचे एक थैला मिला। थैले में सोना नहीं था बल्कि चंद किताबें, पेंसिलें और एक खत था। खत में लिखा था, ख्वाब वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए हो, असल ख्वाब वो है जो दूसरों के लिए भी रोशनी बने। हसन ने इन्हीं किताबों से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ शामिल होते गए। किसी ने मजीद किताबें दी, किसी ने एक कमरा दे दिया और किसी ने मेज़ और कुर्सियां। चंद साल बाद वही छोटा सा कमरा एक बड़ा स्कूल बन गया। एक दिन हसन फिर उसी दरख्त के पास गया। दरख्त पर अब एक नई तहरीर थी, मैं जादुई दरख्त नहीं था, जादू तुम्हारे नेक ख्वाब और मेहनत में था। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। वो हर रोज पहाड़ी के ऊपर जाकर सूरज गुरूब होते देखता। एक दिन उसे वहाँ एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके तने पर लिखा था, जो अपना सबसे बड़ा ख्वाब यहाँ लिख दे, इसका रास्ता खल जाएगा। हसन ने एक छोटा सा कागज निकाला और लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सब बच्चे पढ़ लिख सकें। इसने कागज दरख्त के पास रख दिया और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे दरख्त के नीचे एक थैला मिला। थैले में सोना नहीं था बल्कि चंद किताबें, पेंसिलें और एक खत था। खत में लिखा था, ख्वाब वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए हो, असल ख्वाब वो है जो दूसरों के लिए भी रोशनी बने। हसन ने इन्हीं किताबों से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ शामिल होते गए। किसी ने मजीद किताबें दी, किसी ने एक कमरा दे दिया और किसी ने मेज़ और कुर्सियां। चंद साल बाद वही छोटा सा कमरा एक बड़ा स्कूल बन गया। एक दिन हसन फिर उसी दरख्त के पास गया। दरख्त पर अब एक नई तहरीर थी, मैं जादुई दरख्त नहीं था, जादू तुम्हारे नेक ख्वाब और मेहनत में था। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। वो हर रोज पहाड़ी के ऊपर जाकर सूरज गुरूब होते देखता। एक दिन उसे वहाँ एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके तने पर लिखा था, जो अपना सबसे बड़ा ख्वाब यहाँ लिख दे, इसका रास्ता खल जाएगा। हसन ने एक छोटा सा कागज निकाला और लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सब बच्चे पढ़ लिख सकें। इसने कागज दरख्त के पास रख दिया और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे दरख्त के नीचे एक थैला मिला। थैले में सोना नहीं था बल्कि चंद किताबें, पेंसिलें और एक खत था। खत में लिखा था, ख्वाब वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए हो, असल ख्वाब वो है जो दूसरों के लिए भी रोशनी बने। हसन ने इन्हीं किताबों से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ शामिल होते गए। किसी ने मजीद किताबें दी, किसी ने एक कमरा दे दिया और किसी ने मेज़ और कुर्सियां। चंद साल बाद वही छोटा सा कमरा एक बड़ा स्कूल बन गया।
एक दिन हस्सान फिर उसी दरख्त के पास गया। दरख्त पर अब एक नई तहरीर थी, मी जादुई दरख्त नहीं था, जादू तुम्हारे नेक ख्वाब और मेहनत में था। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हस्सान था। वो हर रोज पहाड़ी के ऊपर जाकर सूरज गुरूब होते देखता। एक दिन उसे वहाँ एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके तने पर लिखा था, जो अपना सबसे बड़ा ख्वाब यहाँ लिख दे इसका रास्ता खल जाएगा। हस्सान ने एक छोटा सा कागज निकाला और लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सब बच्चे पढ़ लिख सकें। इसने कागज दरख्त के पास रख दिया और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे दरख्त के नीचे एक थैला मिला। थैले में सोना नहीं था बल्कि चंद किताबें, पेंसिलें और एक खत था। खत में लिखा था, ख्वाब वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए हो, असल ख्वाब वो है जो दूसरों के लिए भी रोशनी बने। हस्सान ने इन्हीं किताबों से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ शामिल होते गए। किसी ने मजीद किताबें दी, किसी ने एक कमरा दे दिया और किसी ने मेज़ और कुर्सियां। चंद साल बाद वही छोटा सा कमरा एक बड़ा स्कूल बन गया। एक दिन हस्सान फिर उसी दरख्त के पास गया। दरख्त पर अब एक नई तहरीर थी, मैं जादुई दरख्त नहीं था, जादू तुम्हारे नेक ख्वाब और मेहनत में था। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हस्सान था। वो हर रोज पहाड़ी के ऊपर जाकर सूरज गुरूब होते देखता। एक दिन उसे वहाँ एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके तने पर लिखा था, जो अपना सबसे बड़ा ख्वाब यहाँ लिख दे इसका रास्ता खल जाएगा। हस्सान ने एक छोटा सा कागज निकाला और लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सब बच्चे पढ़ लिख सकें। इसने कागज दरख्त के पास रख दिया और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे दरख्त के नीचे एक थैला मिला। थैले में सोना नहीं था बल्कि चंद किताबें, पेंसिलें और एक खत था। खत में लिखा था, ख्वाब वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए हो, असल ख्वाब वो है जो दूसरों के लिए भी रोशनी बने। हस्सान ने इन्हीं किताबों से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ शामिल होते गए। किसी ने मजीद किताबें दी, किसी ने एक कमरा दे दिया और किसी ने मेज़ और कुर्सियां। चंद साल बाद वही छोटा सा कमरा एक बड़ा स्कूल बन गया। एक दिन हस्सान फिर उसी दरख्त के पास गया। दरख्त पर अब एक नई तहरीर थी, मैं जादुई दरख्त नहीं था, जादू तुम्हारे नेक ख्वाब और मेहनत में था। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हस्सान था। वो हर रोज पहाड़ी के ऊपर जाकर सूरज गुरूब होते देखता। एक दिन उसे वहाँ एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके तने पर लिखा था, जो अपना सबसे बड़ा ख्वाब यहाँ लिख दे इसका रास्ता खल जाएगा। हस्सान ने एक छोटा सा कागज निकाला और लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सब बच्चे पढ़ लिख सकें। इसने कागज दरख्त के पास रख दिया और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे दरख्त के नीचे एक थैला मिला। थैले में सोना नहीं था बल्कि चंद किताबें, पेंसिलें और एक खत था। खत में लिखा था, ख्वाब वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए हो, असल ख्वाब वो है जो दूसरों के लिए भी रोशनी बने। हस्सान ने इन्हीं किताबों से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ शामिल होते गए। किसी ने मजीद किताबें दी, किसी ने एक कमरा दे दिया और किसी ने मेज़ और कुर्सियां। चंद साल बाद वही छोटा सा कमरा एक बड़ा स्कूल बन गया। एक दिन हस्सान फिर उसी दरख्त के पास गया। दरख्त पर अब एक नई तहरीर थी, मैं जादुई दरख्त नहीं था, जादू तुम्हारे नेक ख्वाब और मेहनत में था। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हस्सान था। वो हर रोज पहाड़ी के ऊपर जाकर सूरज गुरूब होते देखता। एक दिन उसे वहाँ एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके तने पर लिखा था, जो अपना सबसे बड़ा ख्वाब यहाँ लिख दे इसका रास्ता खल जाएगा। हस्सान ने एक छोटा सा कागज निकाला और लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सब बच्चे पढ़ लिख सकें। इसने कागज दरख्त के पास रख दिया और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे दरख्त के नीचे एक थैला मिला। थैले में सोना नहीं था बल्कि चंद किताबें, पेंसिलें और एक खत था। खत में लिखा था, ख्वाब वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए हो, असल ख्वाब वो है जो दूसरों के लिए भी रोशनी बने। हस्सान ने इन्हीं किताबों से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ शामिल होते गए। किसी ने मजीद किताबें दी, किसी ने एक कमरा दे दिया और किसी ने मेज़ और कुर्सियां। चंद साल बाद वही छोटा सा कमरा एक बड़ा स्कूल बन गया। एक दिन हस्सान फिर उसी दरख्त के पास गया। दरख्त पर अब एक नई तहरीर थी, मैं जादुई दरख्त नहीं था, जादू तुम्हारे नेक ख्वाब और मेहनत में था। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हस्सान था। वो हर रोज पहाड़ी के ऊपर जाकर सूरज गुरूब होते देखता।
एक दिन उसे वहीं एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके तने पर लिखा था, जो अपना सबसे बड़ा ख्वाब यहाँ लिख दे इसका रास्ता खल जाएगा। हसन ने एक छोटा सा कागज निकाला और लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सब बच्चे पढ़ लिख सकें। इसने कागज दरख्त के पास रख दिया और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे दरख्त के नीचे एक थैला मिला। थैले में सोना नहीं था बल्कि चंद किताबें, पेंसिलें और एक खत था। खत में लिखा था, ख्वाब वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए हो, असल ख्वाब वो है जो दूसरों के लिए भी रोशनी बने। हसन ने इन्हीं किताबों से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ शामिल होते गए। किसी ने मजीद किताबें दी, किसी ने एक कमरा दे दिया और किसी ने मेज और कुर्सियां। चंद साल बाद वही छोटा सा कमरा एक बड़ा स्कूल बन गया। एक दिन हसन फिर उसी दरख्त के पास गया। दरख्त पर अब एक नई तहरीर थी, मैं जादुई दरख्त नहीं था, जादू तुम्हारे नेक ख्वाब और मेहनत में था। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। वो हर रोज पहाड़ी के ऊपर जाकर सूरज गुरूब होते देखता। एक दिन उसे वहीं एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके तने पर लिखा था, जो अपना सबसे बड़ा ख्वाब यहाँ लिख दे इसका रास्ता खल जाएगा। हसन ने एक छोटा सा कागज निकाला और लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सब बच्चे पढ़ लिख सकें। इसने कागज दरख्त के पास रख दिया और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे दरख्त के नीचे एक थैला मिला। थैले में सोना नहीं था बल्कि चंद किताबें, पेंसिलें और एक खत था। खत में लिखा था, ख्वाब वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए हो, असल ख्वाब वो है जो दूसरों के लिए भी रोशनी बने। हसन ने इन्हीं किताबों से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ शामिल होते गए। किसी ने मजीद किताबें दी, किसी ने एक कमरा दे दिया और किसी ने मेज और कुर्सियां। चंद साल बाद वही छोटा सा कमरा एक बड़ा स्कूल बन गया। एक दिन हसन फिर उसी दरख्त के पास गया। दरख्त पर अब एक नई तहरीर थी, मैं जादुई दरख्त नहीं था, जादू तुम्हारे नेक ख्वाब और मेहनत में था। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। वो हर रोज पहाड़ी के ऊपर जाकर सूरज गुरूब होते देखता। एक दिन उसे वहीं एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके तने पर लिखा था, जो अपना सबसे बड़ा ख्वाब यहाँ लिख दे इसका रास्ता खल जाएगा। हसन ने एक छोटा सा कागज निकाला और लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सब बच्चे पढ़ लिख सकें। इसने कागज दरख्त के पास रख दिया और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे दरख्त के नीचे एक थैला मिला। थैले में सोना नहीं था बल्कि चंद किताबें, पेंसिलें और एक खत था। खत में लिखा था, ख्वाब वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए हो, असल ख्वाब वो है जो दूसरों के लिए भी रोशनी बने। हसन ने इन्हीं किताबों से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ शामिल होते गए। किसी ने मजीद किताबें दी, किसी ने एक कमरा दे दिया और किसी ने मेज और कुर्सियां। चंद साल बाद वही छोटा सा कमरा एक बड़ा स्कूल बन गया। एक दिन हसन फिर उसी दरख्त के पास गया। दरख्त पर अब एक नई तहरीर थी, मैं जादुई दरख्त नहीं था, जादू तुम्हारे नेक ख्वाब और मेहनत में था। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। वो हर रोज पहाड़ी के ऊपर जाकर सूरज गुरूब होते देखता। एक दिन उसे वहीं एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके तने पर लिखा था, जो अपना सबसे बड़ा ख्वाब यहाँ लिख दे इसका रास्ता खल जाएगा। हसन ने एक छोटा सा कागज निकाला और लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सब बच्चे पढ़ लिख सकें। इसने कागज दरख्त के पास रख दिया और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे दरख्त के नीचे एक थैला मिला। थैले में सोना नहीं था बल्कि चंद किताबें, पेंसिलें और एक खत था। खत में लिखा था, ख्वाब वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए हो, असल ख्वाब वो है जो दूसरों के लिए भी रोशनी बने। हसन ने इन्हीं किताबों से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ शामिल होते गए। किसी ने मजीद किताबें दी, किसी ने एक कमरा दे दिया और किसी ने मेज और कुर्सियां। चंद साल बाद वही छोटा सा कमरा एक बड़ा स्कूल बन गया। एक दिन हसन फिर उसी दरख्त के पास गया। दरख्त पर अब एक नई तहरीर थी, मैं जादुई दरख्त नहीं था, जादू तुम्हारे नेक ख्वाब और मेहनत में था। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। वो हर रोज पहाड़ी के ऊपर जाकर सूरज गुरूब होते देखता। एक दिन उसे वहीं एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके तने पर लिखा था, जो अपना सबसे बड़ा ख्वाब यहाँ लिख दे इसका रास्ता खल जाएगा। हसन ने एक छोटा सा कागज निकाला और लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सब बच्चे पढ़ लिख सकें। इसने कागज दरख्त के पास रख दिया और घर वापस आ गया।
अगली सुबह उसे दरख्त के नीचे एक थैला मिला। थैले में सोना नहीं था बल्कि चंद किताबें, पेंसिलें और एक खत था। खत में लिखा था, ख्वाब वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए हो, असल ख्वाब वो है जो दूसरों के लिए भी रोशनी बने। हसन ने इन्हीं किताबों से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ शामिल होते गए। किसी ने मजीद किताबें दी, किसी ने एक कमरा दे दिया और किसी ने मेज़ और कुर्सियां। चंद साल बाद वही छोटा सा कमरा एक बड़ा स्कूल बन गया। एक दिन हसन फिर उसी दरख्त के पास गया। दरख्त पर अब एक नई तहरीर थी, मैं जादुई दरख्त नहीं था, जादू तुम्हारे नेक ख्वाब और मेहनत में था। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। वो हर रोज पहाड़ी के ऊपर जाकर सूरज गुरूब होते देखता। एक दिन उसे वहाँ एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके तने पर लिखा था, जो अपना सबसे बड़ा ख्वाब यहाँ लिख दे, इसका रास्ता खुल जाएगा। हसन ने एक छोटा सा कागज निकाला और लिख दिया,